Hello, my beautiful souls. This is Tina from Tina Celestial Reading, and the reading that I've got today, we'll be seeing like time has an important message for you. What is this message? What is the message that time is trying to give you? So it is going to be a three-pile reading. So whichever pile resonates the most to you, जो भी pile सबसे ज़्यादा आपको resonate करती है, वो pile आप select कीजिए, and that pile is for you. So before we begin, please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon below. So let's begin with our pile 1. So whoever has selected pile 1, this reading is for you. What message is time trying to give you? What are the changes that are going to come during this time, during this period? What is going to happen in your life during this period, during this time? So we'll be seeing all of that. So let's start with our first pile. Pile 1. Whoever has selected pile 1, this reading is for you. Okay, so let's start with our first pile. What is it that time is trying to tell you, and what is going to happen during this period? So what I am seeing is, you have been going through a very slow period in your life, a very sad and depressive period. You are upset about something. You're not sure where things are going ahead in your life. Are you in the right direction or not? आप सही direction में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आपको इन सब कोई चीज़ों का अभी पता नहीं चल रहा है, आप बहुत कंफ्यूजन में हैं. यू नो योर डायरेक्शन कि आपको करना क्या है, बट वो डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए भी आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो आप प्रॉपरली वो डायरेक्शन में भी नहीं पहुंच पा रहे ना, आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है. सो इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी आपने एक बोलते ना कि अपने आप को इतना लाचार महसूस किया है, आपने अपने आप को इतना हेल्पलेस फील किया कि यू डोंट नो कि आप ने जो किया है वो सही है कि गलत है, आपके साथ जो हो रहा है वो सही है कि गलत है. तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, आप बहुत टाइम से परेशान हैं. आपको पता है कि लाइफ ठीक हो जाएगी, ठीक है, यू नो इट इन योर हार्ट दैट थिंग्स विल गेट बेटर, but you don't know when, you don't know what is going to happen for it, what you have to sacrifice, what you have to give up for that. So all I can say right now is, see, you don't have to sacrifice majorly anything to achieve something, to get to your target, to achieve what you really want. Okay, things will be okay if you show that you are worth it. आपको अपनी ताकत खुद ही निकाल के दिखानी है कि यस, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज अचीवेबल थिंग्स, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर रियली इन माय हैंड, दिस इज व्हाट आई एम रियली केपेबल ऑफ. अगर आप इतना भी करने के लिए आप रेडी है, धीरे धीरे करके आपके एक एक काम बनना शुरू हो जाएंगे. सी, बी इट रिलेशन, बी इट योर करियर, बी इट योर फाइनेंस, बी इट योर एनीथिंग, बी इट योर हेल्थ, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है. मे बी अभी वो टाइम नहीं है जब आप देखें कि हाँ आपका काम हो गया है, या आपको सक्सेस मिली है, या आपके साथ जो अच्छा आप चाह रहे हैं वो हो गया है. लेकिन वेरी सून ये चीज़ें आपके तरफ पॉजिटिवली बढ़ना और होना शुरू हो जाएगी. आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना है कि ओके, इफ आई एम गुड एट समथिंग, दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. इफ आई एम नॉट गुड एट समथिंग, आई हैव टू लेट इट गो. अगर आप ये करना चालू कर देते, ऑटोमेटिकली थिंग्स आर गोइंग टू लुक लिटिल पॉजिटिव फॉर यू, and things are going to get little on the track for you. So what you need to do for this, what is going to happen, see, in the near future things are going to get better, that is what I'm getting, but it is going to be up to you. आप कैसे इसको अपने फेवर में करते हैं ये आपके ऊपर होगा. Time is going to heal everything, time is going to make everything better, but how will you make it in your favor, how will you make it in such a way कि आपको उसका फायदा हो. तो ये आपको देखना पड़ेगा, वरना तब तक आपके लिए इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी. ओके, सो दिस वाज आवर
रीडिंग फॉर पाइल 1. लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. पाइल 2 के लिए हमारे पास क्या रीडिंग है, लेट्स हैव अ लुक. जाती है और उस वजह से भी ना आपके काम थोड़े रुक सकते हैं. तो व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू इज शो व्हाट यू वांट टू डू, शो व्हाट यू रियली फील दैट यू कैन अचीव. आपको अचीव करने के लिए, आपको कुछ डिजर्व करने के लिए आपको वो एक पुश देना पड़ेगा, आपको वो एक एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से मेक श्योर करना पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने लाइक यू नो आई हैव मेड दैट अटेम्प्ट, आई हैव मेड दैट एफर्ट. अभी क्या हो रहा है, आपके एफर्ट्स नहीं दिख पा रहे हैं. अभी क्या हो रहा है, आपने जो किया है उसको लेकर आपने कुछ एक पुश नहीं किया है, आपने एक बोलते हैं एक एक्स्ट्रा जो एक गोइंग दैट एक्स्ट्रा स्टेप टू शो दैट व्हाट कैन बी अचीवेबल, व्हाट इज ट्रूली योर्स, वो थोड़ा आपकी तरफ से कमी दिख रही है. What you need to do right now in this current situation, you need to trust yourself. आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा. because if you stop right now, it is saying don't stop. If you stop right now, it is not what will help you. You need to keep pushing, you need to keep trying, to not give up. This is not the time to give up right now. आपने इतना एफर्ट करके, इतनी कोशिश करके आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अभी और थोड़ा पुश करके आप थोड़ा और आगे जाइए और देखिए आपके लिए आपकी जो मंजिल है, लाइक योर डेस्टिनी, वेयर यू ट्रूली आर सपोज टू बी, वो होना बहुत जल्दी हो जाएगा. एंड आप जल्दी ही उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए. आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू नो रोमांस इज ऑल्सो ऑन द वे फॉर सम पीपल, बिकॉज ये सब चीज़ें जो हो रही है आपकी लाइफ में, वो समवेयर इट इज ब्लॉकिंग योर वे टूवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ. आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने फिनेंसेस में, अपने करियर में इतने एंग्रोस हो गए हैं कि आपने अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना बंद कर दिया है. सो राइट नाउ इट्स अ टाइम दैट यू नो यू नीड टू फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ एज वेल. Focus on what your partner truly wants from you, or if you don't have a partner, start looking for a partner because this is the right time. That is what your time is telling you, that you know just don't be focused on one direction. Keep your direction in all the ways, because ये जो आप कर रहे हैं ये तो होने ही वाला है. Don't stop doing whatever you are doing, that one thing. But meanwhile, keep doing the other things also that are also important in your life. You know, don't just stop with just one thing, one aspect of your life. So this was a reading for pile 2. Let's move on to pile 3. जिन्होंने भी pile 3 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है. Okay. So this is about a relation. जिन्होंने भी पायल 3 सिलेक्ट किया, ये उनके रिलेशनशिप को लेकर है ये कार्ड. आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत एक ठहराव लाना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी. समवेयर देयर अंडरस्टैंडिंग इज मिसिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड यू बोथ want
certain things but in a different way. अब दोनों को कुछ चीजें चाहिए but in a very different way. आप दोनों ही एक सेम पेज पे, एक सेम उस पे नहीं आ पा रहे हैं कि where you feel that आपको भी सेम चीज चाहिए, मुझे भी सेम चीज चाहिए, तो लेट्स मूव टुगेदर. ओके, तो ये आप लोग कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शंस खो रहे हो और अपने डायरेक्शन से अलग हो रहे हो. सो फॉर दैट आपको एक दूसरे के साथ साथ मिलके चलना है. आपको एक दूसरे को समझना है कि yes, if this person also wants the same thing, let me also work on the same thing in the same way. अभी आप लोग दोनों ही अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, which is not really helping you all both. तो अगर आप ये कर देते हो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप दोनों का, in terms of like getting the work done also, and like building up that strength, that trust in the relation, जो अभी थोड़ा बहुत मिसिंग हो जाता है. तो that your time is telling you that build your trust building is very important in your relation right now, because कहीं पे एक गैप आ रहा है, कहीं पे एक दूरियां आ रही है आप दोनों के पीछे. बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए कि yes, we need to work together, we need to make it happen. If you both can make it happen, it is going to be the best thing for your relation and for the thing that you want to make a direction for. आपको जिस मंजिल पे पहुंचना है, whatever you are planning, whatever you are heading to do in your life, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आप लोग साथ में मिलके चलें, ना कि अलग अलग जगह पे जाएं और फिर अलग अलग हो जाए एक दूसरे से. इट्स बेटर दैट आप दोनों की डेस्टिनी सेम है, आप दोनों को सेम डायरेक्शन में जाना है, तो आपको अलग अलग क्यों चलना है. मेक अ सेम जर्नी टुगेदर विद ईच अदर एंड देन यू सी लाइफ विल बी वेरी ब्यूटीफुल, और आपका रिलेशनशिप इश्यूज भी जो आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो विद टाइम build that trust, build that understanding with each other, and if you feel that this is not for us, reconsider that okay, if this is not working out for us, we need to reconsider what we are doing. Don't reconsider the relation, because relationship को खत्म मत करने की सोचिए. कोई लोग अभी फिलहाल अपने relationship को भी reconsider कर रहे हैं. So I would say do not reconsider your relation, reconsider the plan of action, the journey, the direction that you're headed towards. आप एक दूसरे के साथ आप चलना चाहते तो एक दूसरे का साथ दीजिए और उस डायरेक्शन में चलिए जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हो, ना कि एक दूसरे से अलग अलग आप हो जाए. ठीक है. सो दिस वाज अ रीडिंग फॉर पाइल 1. होप आपको तीनों पाइल की रीडिंग पसंद आई एंड यू कुड रेजोनेट विद व्हाटएवर पाइल यू हैड सिलेक्टेड. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रीडिंग कैसी लगी. एंड गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय इंस्टाग्राम पेज Tina Celestial Readings. And DM me if you want any special reading or private reading from me. So thank you everyone for joining today. Hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.